माँ सरस्वती का वंदन करे, ज्ञान से अपना जीवन धन्य करे, बुद्धि विवेक और संस्कार का प्रकाश हर हृदय में फैला हो उजास। Now I request Vedika Bajaj from B.Ed ID department to kindly come forward for the Saraswati Vandana. Now we move on with the lamp lighting ceremony. All the dignitaries kindly come for the lamp lighting ceremony, sir. Dim the light please on the stage. Just little dim the light on the stage. Just enough. तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। I extend a very warm welcome to all of you to this 3-day international conference on child and adolescent psychology, navigating the complexities of development. It is both the honor and privilege to open this gathering of minds and hearts dedicated to understanding, supporting and advancing the well-being of children and adolescents across the globe. We are thrilled to host this diverse assembly of all psychologists, educators, researchers,
clinicians, policymakers, and students also, all united by a shared commitment to improving the mental health and development outcomes of the young people. Your presence here today, whether in person or some of them virtually also have joined, is a testament to the growing recognition of the urgency and importance of this psychology field. The theme of this year's conference, that is navigating the complexities of development, reflects the dynamic and often challenging journey that children and adolescents undergo. From the earliest stages of the life through adolescence, young individuals face a broad spectrum of developmental, emotional, cognitive, and social transition. In today's world, shaped by the rapid technological change, shifting family structures, global conflicts, and mental health crisis, the need of the informed, compassionate, and evidence-based responses has never been greater. Over the next few days, we will explore critical topics ranging from neurodevelopment and identity formation to trauma-informed care, digital media influence, school-based interventions, and cross-cultural perspectives on adolescents' well-being. We are especially excited to hear from our keynote speakers and panelists who bring cutting-edge research, innovative practice, and deeply human insights into the evolving landscape. Let us all use this opportunity not only to share knowledge, but to build bridges between disciplines, between nations, and most importantly, between theory and practice. Let this conference be a space for honest dialogue, critical reflection, and creative collaboration, which is also a part of NEP policy, NEP 2020. In closing this, I extend my heartfelt gratitude to the organizing committee, our generous sponsors also, and every individual who worked tirelessly to make this event a reality. We have with us a lot of, that is the guest of honors with us. First of all, I would like to welcome Dr. Rahul Agarwal. He is IS officer and Deputy Director of Disabilities from Social Welfare Department. A big round of applause for him. We are thrilled enough because all the policies which are made from time to time, he is the key person over there looking after the welfare of disability sector. And most probably a long conversation when he is going to come and present the highlights of the today's, that is the schemes and other things going on. I could say he's the most energetic person and ever ready to work further in the field of disability. So we are honored to have you, sir, over here with a lot of experience, and he's a Delhi University students also from engineering with a lot of experience. We are honored to have you, sir, over there, and wholeheartedly from the family of Ashtavakra and the entire Technia group of institution, we welcome you, sir. Once again, can we have a big round of applause for our chief guest for the day? Then we have with us Professor Saroj Sharma ma'am. A big round of applause for her. She is from Delhi University. She is from IP Indraprastha Guru Govind Singh University, and she has got a rich and varied academic experience as seasoned faculty members and sound administrative experience of heading different institutions offering the graduate and postgraduate degrees of education both in the B.Ed and M.Ed field. She is member of many universities and academic bodies like NAC and named more not to name, but a very big, that is profile she is sharing. Actively she is involved in various projects of UNICEF, UNESCO, ICSSR and other social and cultural forums.
Presently, she is working member in the governing bodies, Board of Studies and Academic Council of many universities of India. She is also a member of various curriculum development and framework formation teams at the national and international field levels of different strata of school curriculum as well as the teacher education. Apart from that, there is a long list, but in few short terms, I would like to elaborate more. She has been a member of consultation committee constituted by National Council for Teacher Education, that is NCTE, for the formulation of National Education Policy under the umbrella of Ministry of Education, member of high level of committee constituted for National NCF, member of even the PARAK, member of PAB for New India Literacy Program. So we are honored to have you over here. A big round of applause for Professor Saroj Sharma. Wholeheartedly, ma'am, I welcome you to this three-day CRE program at Ashtavakra Institute. Thank you so much. Apart from that, we also have with us Dr. Aparajita Dikshit. We are honored to have you over here, ma'am, a consultant clinical psychologist, RCI registered child and adolescent psychologist and family counselor, Institution of Mental Health, Mulchand, MedCity, New Delhi. She is an academic advisor of Expression India, the National Life Skills School and Community Wellness Program. She is a fieldwork supervisor and training resource faculty of National Institution of Public Cooperation and Child Development, which is also known as NIPSIT, under Ministry of Women and Child Development. Recently, she has got approval from Supreme Court of India for Mediation and Reconciliation Committee as a clinical counselor. Dr. Aparajita, we wholeheartedly welcome you. Your list is endless over here with your all the applauds and all that. But to name a few, we wholeheartedly welcome you, ma'am. Can we have a big round of applause? And we are blessed enough to have such a renowned, that is academicians and the clinicians sitting with us. So now on behalf of Ashtavakra, the ones who I cannot name right now, other people are there, Nandini ma'am and the speaker, as we are going to move around, I wholeheartedly welcome the entire galaxy over there. And now with that, I invite our Chairman Sir Dr. Ram Kailash Gupta, who has been the chairman of Technia Group of Institution. A big round of applause, all the students, all the people, the ones who are sitting over there. He is, I can just say, जिसमें कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है, he doesn't know कि इनका profile क्या है, he is always there to help in the society. Now he is a group of entire Technia Group of Institution. Apart from that, he is also the consultant and advisor in number of universities. And सबसे ज़्यादा जो important बात है, he never hesitate to help anyone. So without, this is a small thing I am saying, sir, for you. Now wholeheartedly, can we have a big round of applause for our chairman, sir, Dr. Ram Kailash Gupta ji. Thank you, Dr. Sanjay Mittal. किसी शायर ने कहा है, We are waiting for that, sir. Can we have a round of applause? दुख के अंदर सुख की ज्योति और दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान। दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। मेरा जीवन कोरा कागज
कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। साथियों, हर इंसान को अपने जीवन के कोरे कागज पर अपनी इबादत खुद लिखनी पड़ती है। हर इंसान को अपने जीवन पथ के कोरे कागज पर अपनी इबादत खुद लिखनी पड़ती है। हमारे माँ बाप हमें मदद करते हैं, हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, हमारा देश हमें हर वो सुविधा प्रदान करता है जो हमें एक उन्नत और एक इंसान बनने के लिए चीजें चाहिए। एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट तैयार होता है, लेकिन इंसान को अपनी इबादत खुद लिखनी पड़ती है, अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ती है। शायद इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। आज के सियारी प्रोग्राम उस इबादत, लिखी जाने वाली इबादत का एक छोटा सा हिस्सा है। हर पल, हर मोमेंट, हर व्यक्ति सामने वाले से कुछ सीखता है। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। और शिक्षा का मतलब ही कुछ देना और कुछ लेना, कुछ सिखाना और कुछ सीखना है। आप सभी टीचर्स हैं, जीवन में अगर इस सिद्धांत को अपना लेंगे कि हमारा अब जीवन ही, वैसे तो हर इंसान के लिए ये सिद्धांत लागू होता है, लेकिन शिक्षक के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि उसका जीवन ही कुछ देने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए है। उसके पीछे जो पैसा हमें मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है या जो रेम्यूनरेशन मिलता है, वो तो एक जीवन चलाने का एक छोटा सा माध्यम है। और मैं आज इसी मूवमेंट पे आपको साबित करके बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एजुकेशन की स्पेलिंग भी ना जानता हो और एक छोटा सा एजुकेशन का कॉलेज स्टार्ट हो, जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि ये स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में इस प्रकार का कॉलेज एक बन जाएगा। आप जैसे लोगों की मदद और आगे आने की वजह से ये सब संभव हुआ। कहानी बहुत लंबी है, उसमें जाने का लाभ नहीं है। लाभ केवल इतना है कि जो भी लोग आज डायस पे बैठे हैं, इसी प्रकार से इस कॉलेज को आप और हमें मिलाने के इस मूवमेंट के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। उन लोगों की वजह से आज हम और आप यहाँ सामने हैं। ये कॉलेज, मैं बाकी छोड़ देता हूँ, सिर्फ इस अष्टवक्रा कॉलेज की एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ। एक महिला जो दिल्ली दूरदर्शन के अंदर न्यूज रीडर हुआ करती थी, वो एक दिन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि भैया, मैं एज ए लॉयंस क्लब के नाते कभी कभी इस कॉलेज में जाया करता था, और उन्होंने कहा कि भैया, बहुत सारी बातें कही, शॉर्ट की बात यह है कि मेरे जीवन का अंतिम समय है और आप इस कॉलेज को संभाल लो। और हुआ ये कि इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस थे, लोगों का देना, ये वो लोन, ये कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। और आज इस कॉलेज के पास 40 करोड़ रुपए का सरप्लस पैसा जमा है और हम ये सोच रहे हैं इसको हम इसी लाइन में और कहां खर्च करें, कहां लेके जाएं। ये आप सब लोगों की वजह से संभव हो पाया। और उसके अंदर हमारे डॉक्टर अनमोल जी, जो यहाँ इस कॉलेज के पहले डायरेक्टर थे, और डॉक्टर संजना मित्तल जो आज इस कॉलेज को देख रही हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। मैं ये बात कोई उनको प्लीज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भगवान के आगे, गणपति जी का कल जन्म हुआ है और आज गणपति उत्सव चल रहा है, उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने ये जो टीम ने जो ये काम किया है, भगवान उनको जीवन में उनका यश जरूर उनको मिलेगा। और वो कभी भी संभव नहीं हो सकता था अगर आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और आईपी यूनिवर्सिटी से आज भी हमारे डॉक्टर सरोज जी जो हमारे बीच में हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के जो डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, और जितने प्रोफेसर, सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, उन लोगों की कोऑपरेशन नहीं हुई होती तो आज अष्टवक्रा दिल्ली में नहीं, नॉर्थ इंडिया का टॉप
A+ का कॉलेज का रैंक आज इसको नहीं मिलता। आज CRE दिल्ली में मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेशन के IP यूनिवर्सिटी में केवल 3 कॉलेज हैं। 3 कॉलेज में से अष्टवक्र एक ऐसा कॉलेज है जिस कॉलेज के अंदर पूरे 6 के 6 B.Ed कोर्स चलते हैं। अगर हिंदुस्तान में 6 टाइप की डिसेबिलिटी है, सबके कोर्स यहाँ चलते हैं। तो ये आज IP यूनिवर्सिटी और दिल्ली गवर्नमेंट के हमारे जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनकी वजह से है। आज अगर साइकोलॉजी का प्रोग्राम दिल्ली के अंदर किसी प्राइवेट कॉलेज में स्टार्ट होने जा रहा है तो आपका पहला अष्टवक्र कॉलेज है जहां पर ये है। इग्नू का हमारे यहाँ MA साइकोलॉजी और आपका बैचलर साइकोलॉजी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 50,000 बच्चे इग्नू के, दिल्ली के सबसे ज्यादा बच्चे इस कॉलेज की जो ब्रांच है उसके अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर ये साइकोलॉजी का कोर्स भी है। आज टीचर ट्रेनिंग के लिए अष्टवक्र वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज का हमें अवार्ड मिला है। हमें मींस डॉक्टर संजना मित्तल उनकी पूरी टीम को दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है कि ये कॉलेज है जो दिल्ली में सबसे ज्यादा टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। SCRT की ट्रेनिंग्स हो, इग्नू की ट्रेनिंग्स हो, इग्नू के टीचर्स की हो, आपका स्पेशल एजुकेशन की हो, ओपन स्कूलिंग की हो, बहुत सारे जो टीचर्स ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। और ये जो विश्वास सरकार का और आप जैसे लोगों का, अगर बहुत सारी आपके 28 बच्चे ओलंपिक्स में अवार्ड्स लेके आए अष्टवक्र के बच्चे, अपने आप में हिंदुस्तान में शायद ही कोई कॉलेज होगा जिसके 28 बच्चे टॉप मेडल्स, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स लेके आए हों। एक नहीं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। आज IP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का कल मुझे फोन था कि आज वहाँ पर कोई स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजना मित्तल जी को जरूर वहाँ पे भेजिए और आप भी आइए। अभी 2:30 बजे वहाँ पे 3 बजे प्रोग्राम है, डॉक्टर संजना मित्तल जी वहाँ शायद जाएंगी और आप और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ। और वो छोटा सा आयाम शुरू हुआ दिल्ली में। आज हमारे इस ग्रुप के 5 कॉलेज, एक स्कूल, 125 एकड़ के अंदर संस्कृति यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 22 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे कॉलेज संस्कृत यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा जो इस ग्रुप ने स्टार्ट किए। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की एक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर शुरू हुई पिछले साल, जहां पर पायलट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। सो पायलट ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटी स्टार्ट होना बहुत छोटी सी बात है। वहां पर हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, एरोप्लेन चलाने के लिए उनके पायलट की ट्रेनिंग, हमारे ड्रोन की ट्रेनिंग, ड्रोन के पायलट्स की ट्रेनिंग और सैटेलाइट्स को चलाने की ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग्स वहां दी जाएंगी। इस कॉलेज की सोसाइटी ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एरोप्लेन्स की सर्विस स्टेशंस का लाइसेंस मिला है कि उसी बच्चों को हम ट्रेनिंग दे पाएं कि वो बच्चे जो है ना उसमें काम, बहुत सारे आयाम खुले हैं इस आने के बाद। और मैं दिल की गहराइयों से डायस पे बैठे हुए हमारे अधिकारियों का और जो अभी बैठे हैं या नहीं बैठे उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन सब की वजह से आज ये यहाँ पर हैं। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है और जितने हमारे अपेक्षा थी उससे कुछ शायद ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। और मैडम संजना मित्तल जी ने डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी और सरोज जी की तो डिटेल में आपको बताया है। मैं भी उनकी दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं सर, वेलकम करता हूं कि आपकी जो कॉपरेशन हमेशा ब्लेसिंग्स इस इंस्टीट्यूट को मिली है, वो रीजंस हैं। आप जैसे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स जो बैठे हैं, जो भी डायस पे हैं, एक एक का नाम नहीं लेता, उनकी वजह से आज ये कॉलेज यहाँ पर है और आगे भी ये कॉलेज और आप सब हम मिल करके आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ और थैंक यू वेरी मच। Now I request Mr. Rahul sir to kindly come forward and share their valuable words with all of us. Good morning all. Respected Ram Kailash Gupta ji, Sanjana ji, Saroj Sharma ji, Aparajita ji, Shalu ji, Ranjit ji. If I'm missing the name, I'm so sorry, but all the dignitaries on the dais, off the dais, faculty, participants. First of all, it's a privilege to be here amongst you all. It's really an honor to be sitting amongst all such a knowledgeable people, and most of you are professionals, have a huge experience working on the field. There are a lot of students also who are learning, so we also learn from students also. Today's theme here, child and adolescent psychology and navigating
the complexities of development. It's a very relevant theme and a very important theme. I think the journey from childhood to adolescent, it is this time period which is very critical phase of life where actually the human development takes place. And there are a lot of challenges also for students accordingly, whether it's the peer pressure, academic pressure. If I say this is the time when they actually lay the foundation of one's personality. So somehow the journey itself is very important, and especially for children with special needs or special children, this is even more difficult because as we all know, the things that are easy for others or maybe are far more challenging for children with special needs. So we need to give them an extra help, extra support. Here, it's in this context that the roles of rehabilitation professionals becomes very important. Somehow, you are the instrument which can actually help those children to realize their true potential. You are the instrument that can help the parents realize their dreams about their children. So you would have to realize that child, you have to see that child not just as a diagnosis, a case. You need to see that a human being with full of potentials, which you can help him to harness that potential. आप उसमें वो प्रतिभा को उजागर कर सकते हो, उसको डेवलप करने में मदद कर सकते हो अगर आप लोगों की हेल्प है. तो एक तरीके से आपका इतना नोबल प्रोफेशन है कि कहीं कहीं आप एक पूरे परिवार की जिंदगी को बदल सकते हो अगर आप सिंसियर हो, आप एक्चुअल में स्किल आप में है और आप में नीयत है. सबसे पहले तो नीयत से शुरू होती है, स्किल तो एक्वायर किया जा सकता है. अगर आपकी नीयत है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और आपको लगता है कि एक चैलेंज है, मेरे को अगर भगवान ने मौका दिया है इस बच्चे को, इस परिवार को हेल्प करने का, तो कहीं ना कहीं वो नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से आप वो जर्नी शुरू होती है उस बच्चे की. सो आई डीलिंग विद डिसेबिलिटीज एंड आई गो टू लॉट ऑफ प्लेसेज, आई सी लॉट ऑफ चिल्ड्रन, आई मीट लॉट ऑफ मदर्स ऑन ग्राउंड, हमारे कैंप्स वगैरह होते हैं. तो आई रियलाइज वन थिंग कि सारी कहानी ही माइंड से स्टार्ट होती है. जब आपके दिमाग में ये हो कि ये मुझे ये करना है. सो देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन. जिस प्रोफेशन को आप लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स हियर. सो जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हो, दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. जस्ट लाइक वी कंसिडर डॉक्टर्स एज वेरी नोबल प्रोफेशन, जहां आप किसी की जिंदगी बचा रहे हो, वैसे ही आप किसी की पूरी एक बच्चे की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदलते हो, जैसे मैंने अभी कहा. तो कहीं ना कहीं वो एथिक्स एंड मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू इंश्योर कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी. आप जब कुछ भी सर्विसेज देते हैं, अगर आपके दिमाग में ये है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट में जो है मुझे किसी भी हालत में उसको प्रायोरिटी देनी है, वहीं से वो चीज शुरू होती है, वहीं से आपका योगदान शुरू होता है. फिर नियत के बाद नेक्स्ट आता है अपना स्किल अपग्रेडेशन. जैसे अष्टवक्रा कॉलेज है, मैं मैडम से भी और सर से भी, मैंने इसलिए कई बार पहले भी एक दो बार मैं यहाँ आया हूँ, मैंने मैडम से यही रिक्वेस्ट की थी कि कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्राउंड पे जो स्किल डेवलपमेंट है, थियोरेटिकल नॉलेज इज वन एस्पेक्ट, acquiring practical experience another aspect, and then again evaluating yourself every day and trying to upgrade yourself is another aspect. ये तीनों बिल्कुल different aspects हैं. अभी what is happening around in our education system is primarily we are looking into the theoretical aspects more. सब जगह, चाहे वो education engineering का हो, law का हो, चाहे special education का हो, even MBBS हो, कोई भी field हो. जब हम किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां हम एक थियोरेटिकल बेस तैयार करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, वी गेट फेमिलियर विद लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. फिर नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है जब हम एक्चुअल में हैंड्स ऑन काम करना शुरू करते हैं. अब मेरा ये चीज बताने का कहानी ये है कि अभी क्या होता है, 70% हम लोग थियोरेटिकल सीखते हैं, 20-30% हम प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं. तो हम वेट करते हैं कब हम एक्चुअल फील्ड में उतरेंगे, 2-3 साल किसी के अंडर काम करेंगे, तब थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं. बट माय सजेशंस टू द कॉलेज एंड एवरीवन हियर इज कि कॉलेज के दौरान हमारी थियोरेटिकल पढ़ाई के दौरान ही अगर स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का हमें मौका मिले एक सिंसियर लेवल पे, तो आप जब कॉलेज से निकलेंगे
तो आप तैयार होकर निकलेंगे बिल्कुल ही कि पहले दिन से ही यू हैव द फाउंडेशन रेडी। सेकेंड एस्पेक्ट जो था अपग्रेडिंग योर स्किल। लर्निंग इज थ्रू आउट योर लाइफ। आप चाहे 70 साल के हो जाएं चाहे 80 के हो जाएं, लर्निंग कभी बंद नहीं होती। तो अगर ये एस्पेक्ट आपके दिमाग में है कि हर रोज जब आप देखते हो कि एक चैलेंज आया किसी बच्चे का सामने या किसी भी अडल्ट का आया, काउंसलिंग का आया, थेरेपी से रिलेटेड आया, अगर आप घर जाके सोचते हो कि आज मैं इसको ये नहीं करा पाया, हाउ शुड आई टैकल हिम, ये क्वेश्चन अगर आपके अंदर जगता है, दैट इज वहां से शुरू होती है कहानी। नॉलेज आजकल हर जगह अवेलेबल है, आप ग्रास्प करने वाले होने चाहिए। एक जमाना था जब इंटरनेट नहीं था, एक जमाना था जब ऑनलाइन चैनल्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, गूगल इतना स्ट्रांग नहीं था, एआई नहीं था। आज हर चीज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कॉलेजेस में भी अवेलेबल है। आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आपको ये चीज जरूर तंग एक अंदर से बुरी लगनी चाहिए कि अगर मैं एक हफ्ते तक इस चीज पे कर रही हूं, तो अगर ये नहीं हो रहा है मुझसे, ये चीज हैंडल नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना है उस चीज को सीखने के लिए कि मैं उसको हैंडल कर पाऊं। बस इतना सा क्वेश्चन अगर आप रोज पूछेंगे घर जाके अपने आप से कि आज का दिन क्या मैं वो जस्टिस कर पा रही थी या नहीं कर पा रही थी, तो दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली एक्सप्लोर। कि आप देखें, नेट पे जाके देखें, आप यूट्यूब पे देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, सब कुछ अवेलेबल है। बड़े से बड़े थेरेपिस्ट, बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, उनके चैनल्स देखिए, सीखिए, अप्लाई कीजिए उसको, अगले दिन जाके कोशिश कीजिए, अंडर चीजें फर्क आएंगी। बस आप में वो जिज्ञासा, वो ईगरनेस होनी चाहिए टू इंप्रूव योरसेल्फ। दैट इज द ओनली की टू इट। योर माइंड शुड हैव दैट। अगर वो करेंगे तो यू विल सी द चेंज अराउंड यू, इन योरसेल्फ, योर करियर एंड द पीपल अराउंड यू। अपने आप फर्क नजर आएगा। You need to ask yourself, you are not only a therapist and an educationist, you are an advocate. Advocate in the sense, it is your responsibility to advocate for the rights of that child. अगर कोई चीज आपको लग रही है कि किसी बच्चे के पास नहीं है, तो उसको हेल्प करना, उसको नॉलेज देना, उसके राइट्स की आगे बात करना, किसी से बोलना कि दिस इज दिस, दैट इज ऑल्सो योर जॉब। खाली थेरेपी देना या काउंसलिंग देना इज नॉट योर जॉब। ये एडवोकेसी इज ऑल्सो योर पार्ट। You are the change makers. As I said, you can change a lot of things. Lastly, I'll say कि you need to question yourself and the others. Are you only treating or are you also empowering that child? There are a lot of things that you can do. खाली एक होता है ये कर दिया, एक होता है आगे क्या। जैसे हमने आपको एजुकेशन तो दे दी, बट क्या मैंने आपको वो स्किल दिया, क्या मैंने आपको कनेक्ट कराया वहां से आगे, वो एक अनदर एस्पेक्ट है। तो अगर उसको भी हम दिमाग में रखेंगे तो शायद फाइनल आउटकम से रखेंगे। खाली आउटपुट और आउटकम में शायद लोगों को फर्क पता होगा, आई गेस। व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इज आउटकम। आउटकम है जो आखिरी चीज हम करवाना चाह रहे थे, उसका इफेक्ट। आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ जनरल कि मैंने ये किया और ये उसका फिजिकल आउटपुट है। आई होप मैं शायद खुद नहीं समझा पाया हूं कि आउटपुट और आउटकम में क्या है। ये सीआरई प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। These actually give us platform to interact with a wide variety of professionals. सब अलग अलग नॉलेज के साथ यहाँ आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर्स हैं who have a very distinguished background, जो अपने एक्सपीरियंस से आए हैं, उनके पास अपना बहुत कुछ है आपको देने के लिए। तो प्लीज ओनली एंड ओनली सर्टिफिकेशन के लालच में इन प्रोग्राम्स में आने का नहीं, मतलब शुड नॉट। आवर गोल शुड बी along with that to learn something, go back and actually implement them in your daily lives. So that is very important. When you go from here after 3 days, प्लीज इंश्योर कि ये इवेल्युएट जरूर करें मैं क्या क्या लेके गई एंड वो मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी या नहीं करी। फाइनली आई विल कम टू दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स में। देयर आर फ्यू स्कीम्स जस्ट आई एम नेमिंग क्योंकि आप लोग हैं। एक हमारी सुगम्य सहायक स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, जिसमें भी हम फ्री में मोटराइज ट्राइसिकल्स, मोटराइज बाइसिकल्स, smart canes, hearing aids, everything that is required by any persons with disability, depending on कि उनका financial background थोड़ा सा weaker है, अगर उनको जरूरत है, we are distributing them free of cost. तो अगर हमारे कैंप्स लगते हैं दिल्ली में, अभी भी 7-8 कैंप्स अभी रिसेंट में हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, आगे अभी और बहुत सारे कैंप्स आएंगे। आप ऑनलाइन साइट पर जाके दिल्ली गवर्नमेंट की ढूंढ सकते हैं सुगम्य सहायक स्कीम। तो अगर कोई ऐसा आपके नोन में होता है जिसको कोई हेल्प चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, प्लीज कनेक्ट देम विद अस ड्यूरिंग दोस कैंप्स ऑल्सो, एंड इन जनरल ऑल्सो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सच पीपल एंड यू कैन प्रोवाइड अस दैट। सो वी विल इंश्योर दैट दे गेट द डिवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारी हमारी स्कीम्स आ रही हैं अभी ऑफ लेट, जो विच आर इन पाइपलाइन, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्क्लोज देम उससे पहले।
और बाकी यूडीआईडी के लिए भी ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम, आई नो बहुत सारे लोगों के यूडीआईडी बनता नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट प्लीज मेक पीपल अवेयर, जो पेरेंट्स आपके संपर्क में हैं, टेल देम टू एनरोल फॉर यूडीआईडी, इट्स अ इंपॉर्टेंट कार्ड, इट्स एन आइडेंटिटी फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी जस्ट लाइक एन आधार कार्ड. Going forward, all the schemes of central government and Delhi government would be linked to UDID. तो जिनको नहीं पता है पेरेंट्स को या सोचते हैं टैग लग जाएगा, ये लग जाएगा, it's your job to actually counsel them and make them understand the utility of this card, so that at least we have the right database to make the policies. We'll bring the schemes, we'll make the policies for them, we'll help them out for, if we have the correct data. तो आप प्लीज अवेयर करें लोगों को. और भी कोई इश्यू होगा, अगर कोई है तो प्लीज, कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. So thank you so much for inviting me here. It was a great experience. Thank you. Thank you, Dr. Rahul sir. It was indeed a pleasure over here hearing from you. And can we have a big round of applause? Because जब हम पॉलिसी एक्चुअली में पढ़ते हैं और जब जो बनाने वाले होते हैं वो एक्चुअली में बना रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड आई कैन फील द पेन दैट इज ही सफरिंग. और वैसे भी राहुल सर से बात होती है तो द पेन ही हैज, कि इनको लगता है डिसेबिलिटी सेक्टर में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जरूर दें. और जैसे कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं एजुकेशन में एंड यू आर देयर विद चिल्ड्रन विद that is the person that is CWSN children, so we want that is you also, कहीं भी कोई भी मौका मिलता है तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए जरूर आप जोर दें. क्योंकि सर से हमेशा जब भी मीटिंग होती है तब ये बात जरूर आती है कि बच्चे सर्टिफिकेट लेते हैं लेकिन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता. सर थैंक यू फॉर ऑल द एडवाइस दैट यू हैव गिवन एंड थैंक यू फॉर दैट इज शेयरिंग द पॉलिसीज दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम यू, सुगम्य भारत also and all the policies. Thank you so much. Now I invite Dr. Professor, that is Saroj Sharma from IP University. And one more thing, जैसे आज I am feeling so privileged over here कि B.Ed Special Education जो आज इन्होंने सपना दिखाया था, ये मैडम थी जिन्होंने आज इतने साल पुराने 2014 से पहले भी इन्होंने सपना देखा और अष्टवक्र से जो लेके आना बीज बोने वाले ये मैडम थी. तो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन का सपना दिखाया था. मैम वी कैन हैव. सर्वप्रथम वांगमयी मां शारदा को नमन. कवि हृदय, चेयरमैन ऑफ टेक्निया इंस्टीट्यूशन कैलाश गुप्ता जी, bureaucrat who is having passion for education sector and particularly in special education Rahul ji, director संजना मित्तल जी, यहाँ अपराजिता जी हैं जो मंच पे बैठे हुए हैं, learned academician, counselors and also stakeholders of education sector who all are sitting over here. Warm greetings from University School of Education, GGS IP University. It is a great period where transformative phase education sector is witnessing. National education policy is on the fore. And we all as stakeholders of education are into its implementation process. One simple question, how many of you have gone through that policy draft? कितनों ने पढ़ा है? NCERT में लाखों की संख्या में सजेशन आते थे, ओपन फोरम पे डाला गया था और हम लोगों के लिए एक टास्क था कि कैसे उनके सजेशंस को करें. पहला जो ड्राफ्ट था दैट वाज अंडर लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर JS राजपूत एंड वैल्यू एजुकेशन पे उनके साथ काफ़ी काम हमने भी किया था. एंड आफ्टर दैट अंडर साइंटिस्ट, रेनाउंड साइंटिस्ट मिस्टर कस्तूरी रंगन जी, देयर वाज अ कमिटी फॉर्म्ड to include implementation policies for implementation. बहुत 2 साल तक सजेशन मांगे गए और अगर ये स्थिति है कि कोई भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है. I request you all, that is there on the website, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हो, UGC का हो, वेबसाइट पे इट इज अवेलेबल. आप देखिए कि क्या है. This policy is based on 4 pillars: access, equity, quality, skill development, and that too under the ambit of Bharat Kendrit Shiksha. I am happy
with the name of this organization अष्टावक्र. अष्टावक्र एक ऋषि थे जिन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया था शरीर की वक्रता को दूर करने के लिए, क्योंकि वो उस परिस्थितियों से गुजर रहे थे. और एक चेयरमैन जब ऐसा इंस्टीट्यूशन शुरू करता है तो आप बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है. I remember in 2011, Professor Bandyopadhyay, who was Vice Chancellor of Universities, GGSIP University, he called me one day. I was Dean that time. I am the first Dean of University School of Education in Education. He called me कि सरोज जी UGC से ग्रांट आया है करीब 87 लाख का, that was for MEd. और उस समय एक फिल्म बड़ी आ रही थी तारे ज़मीन पे, आप लोगों ने देखा होगा. LD was new area for me, learning dyslexia. वो बच्चा learning dyslexia से गुजर रहा था और बड़ा पैशन था कि ये है. बहुत कुछ कभी कभी फिल्मों के जो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत होते हैं. मैं कुछ करना चाह रही थी. सोचा IP यूनिवर्सिटी में MEd स्पेशल एजुकेशन शुरू कर दें. MEd तो था ही वहाँ पे. वी डोंट हैव BEd इन यूनिवर्सिटी. BA अभी शुरू किया है हम लोगों ने 2 साल पहले. ITEP जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. सो उस पैसे को हमें यूटिलाइज करना था. हाउ टू गो अहेड. आई जस्ट वेंट अहेड एंड हमने एकेडमिक काउंसिल से लर्निंग डिसलेक्सिया और उसके साथ 3 कोर्सेज MR का HIO हमने शुरू करवा लिया. मगर नो एफिलिएटेड BEd कॉलेज वॉज एग्री टू इनिशिएट दिस प्रोग्राम. इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग. एक ओखला में एक महाराजा कर्ण सिंह का शायद एक कॉलेज था, दे अग्रीड कि हम शुरू करेंगे 2 साल तक MR के लिए, HI के लिए, क्योंकि दैट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग कोर्सेज की, उससे प्रॉफिट होता है. तो वो लोग चलो ठीक है MR के लिए, इसके लिए, उसके लिए. उसी समय निप्सिट के डायरेक्टर मेरे पास आए थे. उन्होंने निप्सिट में भी एक कोर्स शुरू किया. मैंने जब स्टडी किया तो NIMH हैदराबाद में सिर्फ LD पे कोर्स था एंड अनदर वाज इन SNDT मुंबई. सो अगर हम यहाँ MEd शुरू करते तो BEd स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जरूरी थे. उस समय JP सिंह जी थे RCI में. आप में से अगर कोई RCI के होंगे तो जानते होंगे. तो JP सिंह जी ने कहा कि सरोज जी हम बिल्कुल 3 साल का नहीं रखेंगे कंडीशन कि BEd होना ज़रूरी है स्पेशल एजुकेशन, आप MEd शुरू करिए. बट दिस वॉज अ टास्क फॉर अस कि हम MEd स्पेशल एजुकेशन शुरू करेंगे तो BEd स्पेशल एजुकेशन के बच्चे मुंबई से तो नहीं आएंगे. एंड हु विल टीच देम. टीचर्स वेर ऑल्सो अ थिंग टू वरी. तो फिर हमने BEd स्पेशल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ JP सिंह जी ने कहा देयर इज नो कंडीशन, हमने लॉन्च कर दिया. आई एम हैप्पी कि शायद अष्टावक्र ने ही LD सबसे पहले शुरू किया. नो अदर कॉलेज इन IP यूनिवर्सिटी अग्रीड टू स्टार्ट एंड दिस वाज द फर्स्ट कोर्स इन दिल्ली, बिकॉज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नहीं है. लेडी इरविन वगैरह में भी दूसरे कोर्सेज हैं मगर LD नहीं था. अब क्या है आई डोंट हैव एनी आइडिया. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस कोर्स. बाद में हम VI और बहुत सारे कोर्स लिए. I was the chairperson of National Institute of Open Schooling. अभी मैं 8-9 महीने पहले वापस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आई हूँ. वहाँ पर आपके यहाँ भी शायद सेड सेंटर है. मैक्सिमम नंबर ऑफ सेड सेंटर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी सेंटर. हमने सेड सेंटर इस्टेब्लिश किया था और मैक्सिमम इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम. लाइक CBSE जैसे एक बोर्ड है वैसे NIOS ओपन एंड डिस्टेंस मोड में बोर्ड है. तो उस समय प्रधानमंत्री ऑफिस से PMO से हमारे पास आया कि वो कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं. अनीता करवाल जी एजुकेशन सेक्रेटरी थी. हम लोगों ने मीटिंग की एंड वी कन्विंस्ड पीपल PMO कि हम साइन लैंग्वेज लाएंगे, इंडियन साइन लैंग्वेज. एंड इट वॉज गिवन टू द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर. इंडियन साइन लैंग्वेज को लाने वाला, और इसके लिए हमें यूनेस्को ने किंग सेजोंग अवार्ड दिया. सो दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. और कोरोना चल रहा था. आई एंड ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वी ऑल वेंट टू यूनेस्को इन दिल्ली ऑफिस और वहाँ पे मिला एंड दैट वाज अ बून. वी वर्क वेरी हार्ड फॉर टॉकिंग बुक्स. टॉकिंग बुक्स फॉर होम? जो देख नहीं सकते हैं. डेजी फॉर्मेट में टॉकिंग बुक्स बनी. हियरिंग इम्पेयरमेंट, learning dyslexia, that organization is working on 14 disabilities.
सो आई एम हैप्पी कि NCERT और NIOS इन दोनों ने मिलके सबसे ज़्यादा डेजी फॉर्मेट में किया और दीक्षा पे और बहुत सारे पोर्टल पे लेकर आए. When I was leaving NIOS, हमारे पास, आप राहुल जी शायद आप जानते होंगे, let him talk. I received one request from Ministry of Education कि Ministry of Social Justice देश के डिसेबल सेक्टर के हर ज़िले में एक सेंटर है जहाँ पे डिसेबिलिटी का है, और वो चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से MOU करें. धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात की गई और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इज डूइंग नॉट ओनली वर्क इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम हो रहा है, क्योंकि एज आई सेड एक्सेस बाय द ईयर 2030 वी हैव टू अचीव 30% लिटरेसी रेट. 30% में कितना परसेंट इंक्लूजन का है, कोई बता सकता है? जो 100% लिटरेसी रेट होगा विदाउट इंक्लूजन, हाउ कैन वी ओनली 2% इंक्लूजन इज देयर इन दिस 100% लिटरेसी रेट, and that we have to increase. India is having largest number of special kids. So अगर आप लोग इस प्रोफेशन में आए हैं, हैट्स ऑफ टू यू. मुझे आपके पहले डायरेक्टर ने बुलाया था जो संजना जी से पहले थे, और किसी इंस्पेक्शन में मैं आई थी एंड 1 घंटे यहाँ पे रही और मैंने उन बच्चों को देखा. हैट्स ऑफ टू दोस टीचर्स, वो जिस तरीके से हैंडल कर रही थी. 1 घंटा हमारे लिए टीडियस होता है. थिंक ऑफ द टीचर्स जो दिन भर रहते हैं. एक शुभ समाचार मैं आपको गुप्ता जी देना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ योर रिक्वेस्ट एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ B.Ed कॉलेजेस, बिकॉज हमारा जो सिलेक्शन होता है वो ITEP में NCT के थ्रू होता है और CUET को भी हमने मान्य कर दिया है. एडमिशंस आर वेरी लो एंड स्पेशली इन स्पेशल एजुकेशन फैकल्टी की भी कमी है, स्टूडेंट्स की भी कमी है. दैट वी आर अवेयर ऑफ वाई स्टूडेंट्स number of teachers are low despite Delhi government recommendation few years back कि हर स्कूल में 2 स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए. number is not increasing because it needs lot of devotion and dedication. So हमने फिर से पोर्टल खोला है. सेकेंड राउंड ऑफ टेस्ट विल बी देयर. 4th तक इसकी लास्ट डेट है. आई वांट टू अनाउंस, आई पर्सनली वेंट टू VC, हमने एडमिशन ब्रांच से मीटिंग की. सो आई होप नंबर विल इंक्रीज, बट अगेन आई विल से यू आर इनटू वेरी पायस प्रोफेशन ऑन दिस एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है. इक्विटी इज ऑफ इंक्लूजन ऑफ व्हाट? Few years back, one of my cousin came from US और उनकी बेटी जो है she was having Down syndrome. When I asked कि कैसा प्रोग्रेस है माया का, he said 70% inclusion है. That was a new concept for me. 70% inclusion आप बता सकते हैं क्या है? Is there any methodology of measuring inclusion in India? NCERT में बात की, NCERT की कई कमेटियों में मैं थी. एक हमने लेबोरेटरी में जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनको लेबोरेटरी में CBSE या दूसरे बोर्ड साइंस नहीं पढ़ने देते 9th स्टैंडर्ड में. जो स्कूल्स हैं दे डोंट गिव देम साइंस एज सब्जेक्ट. दिस इज अ टैबू फॉर देम कि लैब में जाके क्या करेंगे डिसेबल बच्चे. वी मेड वेरियस प्रैक्टिकल्स, वेरियस गाइडलाइंस कि कैसे हम उनको लैब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में उनको हम दे सकते हैं. एंड लर्निंग साइंस शुड नॉट बी टैबू फॉर दीज स्टूडेंट्स. सो जब मैं इंक्लूजन की बात कर रही थी, दिस वॉज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी. देन आई आस्क, NIMS से भी पूछा, बहुत सारे निपिड मुंबई है क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स निपिड मुंबई में भी दे आर लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं. डू यू हैव एनी मैकेनिज्म टू मेजर इंक्लूजन? उन्होंने कहा इंडिया में नहीं है. आई रिक्वेस्ट संजना जी, अगर आपकी टीम कुछ इसमें कर सकती है. 70% इंक्लूजन मीन्स जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जो बच्चा डिसेबल है, क्योंकि इंक्लूजन इज द पॉलिसी, क्लास में ही उसको पढ़ना है, तो वहाँ पे वो कितना कोप अप कर लेता है, कितना नॉर्मल बच्चों के आस पास आ सकता है. हाउ टू मेजर? व्हाट आर द पैरामीटर्स? सो इन दैट एरिया वी हैव टू वर्क. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बहुत अच्छा प्रोफेशन आपने चुना है और इसमें आप अगर आए हैं
तो जो कहते हैं ना, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो एक ह्यूमन पायस प्रोफेशन में आप आए हैं. यू हैव चोज अ वेरी ह्यूमन प्रोफेशन, सो रिमेन इन दैट वे इटसेल्फ, और शायद ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी. और जैसा मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में MOU हुआ, और उसमें ये हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उनके बीच में होगा. और ये अभी 2 महीने पहले मिस्टर शर्मा JS है मिनिस्ट्री, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, यू मस्ट बी नोइंग. तो विथ हिज इनिशिएटिव ये MOU हुआ है, और आप लोग भी इससे लाभान्वित होंगे. आई नो लंबी कहानी है और जितना भी बोलेंगे कम रहेगा, बट येस, अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट अष्टावक्र इंस्टीट्यूशन that you are doing so wonderful. बहुत अच्छी स्कीम राहुल जी ने बताई हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट इज़ वर्किंग. बहुत अच्छे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम. बस आपके लिए एक लाइन आती है, क्योंकि हमारे राहुल सर वेट कर रहे हैं, बिकॉज इस उनके लिए बहुत सारी मीटिंग्स हैं, वो छोड़ के आए हैं. जो सारे यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए बस एक लाइन है इस फील्ड के लिए. नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूसरों को दे दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती पर भगवान है. A big round of applause for all the people, the ones who are sitting. Thank you so much. And now we are honored to have, and we would like to welcome Dr. Rahul sir over here. We would like to honor you. Sir, can we have you over here, sir? हाँ, हाँ. चंद्रकांत जी लाइट म्यूजिक चला दो पीछे फटाफट जल्दी. Kindly have a big round of applause, please. Thank you, ma'am. With the national anthem, we would like to end up with this inaugural ceremony. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे